Good afternoon everyone, this is Anil Kumar Singh, your computer teacher again with a new point of the MS Excel, and the next part of the MS Excel is home, because in the last video I have discussed you the introduction of the MS Excel, where I have told you what is MS Excel and what is the extension file of it. After that I am going to the first session of home, where I will discuss with you the section of the clipboard, which I have already discussed in the last video. After that, font. Next one is alignment. Next one is style. Okay, the next one is cell, and the last one is editing. One more option is available, which is number, but it is not discussed yet, because I will discuss it when I will use the next tab, which is formula. Okay, so here I am going to tell you what I am going to discuss in the video. Where clipboard, you know very well the three options available. First one, copy, cut and paste. Already we are discussed in the PowerPoint session and as well as in the Word session. Font, इसमें भी हम लोगों ने बात की थी साइज की, कलर की और स्टाइल की, या हम कह सकते हैं फॉन्ट स्टाइल. ओके, अलाइनमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टॉप, बॉटम, सेंटर, ओके, कुछ इस तरीके के अलाइनमेंट्स की बात होती है. स्टाइलिंग की बात करें तो एक्सेल में इस बार कुछ नया है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे. फर्स्ट वन इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड द सेकेंड वन इज फॉर्मेट ऑफ टेबल्स. ओके, सो दीज आर द ऑप्शन which we are going to discuss. In the last here I am going to tell you, like in cell editing, we are talking about the cell. We will discuss about the insert, delete, and format. Okay, and in the last option, editing, where mainly three functions are worked. In the last area of MS Office, where I have discussed in PowerPoint as well as in Word, find, replace and go to. So these are the options which I am going to tell you in the video of MS Excel in the home tab. Okay, so these are the options which are available. So here we are going to use the PowerPoint session to make these kind of the points very useful, to make these points understandable. Okay, so let's go for the PowerPoint session. Start with the new topic, home. Okay students, let's start with the PowerPoint session of the MS Excel home section. Home section means the starting section of the MS Excel, where you can see how the MS Excel page will be designed or will be shown to the users. So there are so many things which you can use in your MS Excel to make the Excel sheets more attractive. Why? Because sometimes it is more important to show the specific point to the user, just because to concentrate on Excel sheet, because it is the database type. That's why we are using some kind of features which make it somewhere attractive. So here I am going to show you the tools which is available on the home section, so which is very useful in the MS Excel sheets. Okay, so I start with the first slide. I am going to show you the first page, okay, the starting page or home page, where you can see the lots of options. Let's start with the first point. First option is the home page. Okay, there are basically 7 parts.
I will show you. There are basically 7 parts. The first, home, insert, page layout, formulas, data, review, view. So most of the options which I have told you yet, like views, review, home, insert, these options you are already taught in MS Word and MS PowerPoint, because the most of options are same. And in the last video I have already told you the clipboard options and the font option, where I have told you what is the cut, copy, paste, and what is the font option, where you can see the bold, italic and underline option, text color, background color, text size increase, decrease, text size and text style. So these are the points which we have already discussed in the last video. So here I am going to discuss the important factor which you don't know. Okay, so let's go with the factors starting. चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स से जो आप लोगों ने अभी तक पढ़े नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग इन ऑप्शंस को देखने से कि होम टैब में आपके बेसिकली ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 7 ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए हैं। ऑप्शंस नहीं, दे आर द ग्रुप्स एक्चुअली, वेयर सम कंटेंट्स आर अवेलेबल इन द सिंगल ग्रुप। इट मीन्स अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ग्रुप इज द क्लिपबोर्ड, वेयर द कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर टूल is available. Second option or second group is font, where the font style, font size, font increase, font decrease, bold, italic, underline, border, background color and text color. ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अलाइनमेंट्स की अगर बात की जाए तो टॉप, मिडिल, एकदम बॉटम एंड द लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। फिर इंडेंटिंग की बात की जाए तो दीज 2 ऑप्शंस आर इंडेंटिंग, लेफ्ट इंडेंटिंग, राइट इंडेंटिंग। ओके, एंड जो आपका ये अप में है, स्टार्टिंग में आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपके टेक्स्ट की स्टाइलिंग है कि आपको राइट टू लेफ्ट एकदम कर्सिव में लिखना है, यानी 45 डिग्री के एंगल में लिखना है, कुछ 45 डिग्री के अप टू डाउन लिखना है, या आपको टेक्स्ट को कुछ 90 डिग्री पे लिखना है। ठीक है, तो दीज आर द ऑप्शन कि आप अपने जो सेल का टेक्स्ट है उसको किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। रैप टेक्स्ट को रैप करने की बात होती है। कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, रैप में हम अपने मेन डेटा को छुपा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने वर्ड लिखा अनिल, तो अनिल के अंदर में हो सकता है कि अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस छुपा दूं, तो वो रैप टेक्स्ट के अंदर में आएगा। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, मल्टीपल सेल्स को मर्ज करना, यानी मल्टीपल सेल का सिर्फ एक सेल बना देना और टेक्स्ट को बिल्कुल मिड से लिखना स्टार्ट करना, दैट इज़ मर्ज एंड सेंटर। आप लोग जब लैब में आएंगे आई विल शो यू हाउ इट इज़ वर्क। नेक्स्ट वन, नंबर्स की हम लोग बात अभी नहीं करेंगे। नंबर्स की बात हम लोग जब फॉर्मूले यूज़ करेंगे तब करेंगे। बेसिकली यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं परसेंटेज एंड साइंस, सो मैनी थिंग्स आर देयर। एक्चुअली यहाँ पे बात की जाती है करेंसीज़ की। ठीक है, तो हम उसकी भी बात करेंगे। स्टाइल्स, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो आपकी जो एक्सेल शीट है उसमें अलग अलग फॉर्मेट प्रोवाइड कराती है, यानी किस तरीके के फॉर्मेशंस हैं मैं आपको अभी शो करूँगा। फॉर्मेट एज अ टेबल, टेबल के फॉर्मेशन की अगर बात की जाए, टेबल की स्टाइलिंग की बात की जाए तो यहाँ से उसमें डिफरेंट कलर, डिफरेंट स्टाइलिंग की यूज़ की जाएगी। मैं आपको मल्टीपल उसमें दिखाऊंगा कि किस किस तरीके का टेबल आप लोग बना सकते हैं। यानी एक नॉर्मल टेबल आपने बनाया है उसको आप स्टाइलिश बना सकते हैं। ये आपके एक सेल का स्टाइल है कि आप किस एक सेल को किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं। तो दीज आर द स्टाइल्स टू शो द सेल्स या टू यूज़ इन सेल्स। ओके, नीचे बात करें सेल्स की, तो सेल्स में 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फर्स्ट वन इंसर्ट, सेकंड वन डिलीट एंड थर्ड वन फॉर्मेट। इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे एडिटिंग की, जिसमें ऑटो सम्स में 3-4 फंक्शंस हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। फिल के बारे में बात करेंगे कि आपका जो सेल है उसे फिल कैसे किया जाता है विद द कलर्स। क्लियर, आपके डेटा क्लियरेंस की बात है। शॉर्ट एंड फिल्टर की बात की जाए तो शॉर्ट हम लोग अपने डेटा को शॉर्टिंग कैसे करते हैं, किस मोड में करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट वन इज़ फाइंड एंड सेलेक्ट। तो फाइंड एंड सेलेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो हम डेटा को फाइंड, किसी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड, रिप्लेस या गो टू, दीज आर द मेन ऑप्शन। एडिटिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनली हम फोकस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और हम लोग इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट पे। ओके, स्टार्ट विद द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फर्स्ट जो आपको मैं शो करने जा रहा हूँ, ये मैंने एक छोटा सा रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ द रिकॉर्ड, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12, जिसमें मैंने अटेंडेंस दिखाई है मंडे की, मंडे से लेकर सैटरडे की अटेंडेंस दिखाई है। ठीक है, किसी एक डेट की अटेंडेंस है ये।
और वहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करना चाहता हूँ, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हाईलाइटेड सेल रूल्स का है। हाईलाइटेड सेल रूल्स में अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा स्ट्रेच करके, ठीक है, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू, टेक्स्ट कंटेन, अ डेट कंटेन, अकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे एक तरीके से आपकी कंडीशंस हैं कि अगर ये कंडीशंस फॉलो होती है तो आपका जो टेक्स्ट है वो कलरफुल हो जाएगा। लाइक अगर मैंने एक ऑप्शन दे दिया कि जो वैल्यू है, जो सेल वैल्यू है वो ग्रेटर देन 50 हो, तो मेरी जितनी भी सेल्स ग्रेटर देन 50 हैं वो कैसी हो जाएं, वो रेड हो जाएं या ग्रीन हो जाएं या येलो हो जाएं। या लेस देन की अगर हम लोग बात करें कि लेस देन 50 हो तो हमारी सेल जो है वो रेड हो जाएं, ग्रीन हो जाएं या येलो हो जाएं, जैसा भी ऑप्शंस अवेलेबल हो या जैसे कलर आप लोग चूज़ करें, ठीक है। तो दीज आर ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस सेल, ओके। मैं आपको इसमें शो भी कर देता हूँ, ठीक। तो ये हाईलाइटेड टेक्स्ट सेल रूल्स की बात है। तो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन ऑप्शंस को अप्लाई करके यहाँ पे आपकी हाईलाइट किया जाता है एक सेल को, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो टॉप टू बॉटम रूल है। यहाँ पे टॉप टू बॉटम के यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे एक टेक्स्ट को कलरफुल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं। पहले जैसा क्या है कि टॉप 10 आइटम का हमारा सारे जो कलर हैं वो रेड हो जाएं। टॉप 10% यानी जो 100 परसेंटाइल में अगर कुछ चल रहा हो तो टॉप 10% की वैल्यू के हिसाब से हमारे जो टेक्स्ट हैं वो रेड, ग्रीन या येलो हो जाएं। बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10% में भी सेम वही है कि आपके बॉटम 10 जो ऑप्शंस हैं वो टेक्स्ट ग्रीन या रेड हो जाएं या येलो हो जाएं। कलर हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। एबव एवरेज, एक एवरेज मार्क मैंने दिया, मैंने ओवरऑल उसका एवरेज निकालेगा। मान लीजिए उसका एवरेज 50 है तो 50 से एबव जितने भी वैल्यूज़ हैं उनका कलरफुल हो जाए या वो रेड कलर में हो जाए या वो अलग टेक्स्ट में दिखाई देने लगे, ठीक है। बिलो एवरेज यानी 50 से अगर बिलो हो तो कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे जो सेल्स हैं वो ग्रीन, येलो, रेड जो भी कलर आप चूज़ करेंगे उस कलर में शो हो जाएं। इससे क्या होता है, हमारा डेटा जो है ना वो डिग्निफाई हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक परसेंटेज एरिया निकाला अपने स्टूडेंट की प्रेजेंट का कि जिसकी प्रेजेंट जो है वो 75% से कम होगी, उसको मैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने नहीं दूंगा। आई विल डिनाई देम टू गिव द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इफ़ दे डोंट हैव गेट द 75%। और मैंने ये रूल लगा दिया इसमें हाईलाइटेड सेल रूल्स में या फिर टॉप में नहीं, हाईलाइटेड में, उसमें मैंने एक परसेंटेज दे दिया जिसका 75 से एबव है उसको मुझे ग्रीन दिखा दे, बाकी जो लेस हैं उनको रेड दिखा दे। तो जो रेड स्टूडेंट होंगे उनको मैं टेस्ट देने नहीं दूंगा। तो यही एक फ़ायदा होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। बात करते हैं अभी और की भी। नेक्स्ट वन है डेटा बार्स। डेटा बार्स को कलरफुल करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। देखो मैंने ये कलरफुल किया भी है, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डेटा बार। ये मैंने किया है ना, देखो डेटा बार्स के साइड में से कलर आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैं अपने जो सेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब देखने लायक बना सकता हूँ। क्योंकि वाइट सेल्स तो अगर शो हो रहे हैं तो उसमें कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन इस तरीके से सेल्स शो होंगे जैसे 65 है तो उसमें देखो कितना ज़्यादा कलरफुल है। 64 है, जीरो वाले में कलरफुल ही नहीं है, किसी जीरो वाले में कलरफुल नहीं है, ठीक है। तो जितना डेटा मैंने सेलेक्ट किया था, मैंने सिर्फ इतना डेटा सेलेक्ट किया था क्लास की अटेंडेंस का, तो उसी डेटा में आपकी ये ग्रिड और उसमें कलर कोई भी चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो ये आपका डेटा बार्स हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में भी अगर आप गौर करेंगे तो सभी को मैंने कलरफुल बना दिया है, ठीक है। इसमें कलर स्केल है। कलर स्केल में क्या है, जिसमें डेटा 0 से ज़्यादा है या जिसमें डेटा प्रेजेंटेबल है उसको उसने रेड से शो किया है, बाकी सारे के सारे ग्रीन से शो कर दिए हैं। दिखाई दे रहा है आप सभी को? अगर आप गौर करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू जो रेड से शो हो रही है उसमें आपका किसी ना किसी तरीके का नंबर, कंप्लीट नंबर है, 1 to मतलब ग्रेटर देन 1 नंबर पड़ा हुआ है। बाकी जो नंबर्स आपको 0 दिखाई दे रहे हैं उसमें आपका ग्रीन हो गया है, ठीक। तो इस तरीके से मैं डेटा बार्स को या कलर्स जो हैं स्केल्स को शो कर सकता हूँ। क्लियर? चले नेक्स्ट की बात करेंगे। अब यहाँ पे आइकन है, आइकन्स का इस्तेमाल किया गया है। जिनकी वैल्यू प्लस होगी वो अप वाला दिखाएंगे, जिनकी वैल्यू डाउन होगी वो डाउन वाला दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपकी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं यानी 50 प्लस जा रही हैं उसमें ग्रीन एरो है और अप की साइड में है। जितने में 0 वैल्यू है उनमें सबके सब डाउन साइड में है। तो ये भी एक तरीके के रिजल्ट को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है।
कि जो रेड एरो होंगे वो शो करेंगे दीज आर द स्टूडेंट हु डोंट अटेंड द क्लास, हु डोंट हैव द 75% अटेंडेंस, दैट्स वाई वी कैन डिनाइड देम टू अटेंड द हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। ओके, सो ये हमारे फ़ायदे होते हैं हाईलाइटेड टेक्स्ट के, और ये हाईलाइटेड टेक्स्ट कहाँ से आते हैं? हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। ये है न्यू फॉर्मेट रूल्स। न्यू फॉर्मेट रूल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं कलर। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ और कलर रेड और येलो कर दिया है, यहाँ के हिसाब से मैं अपने कलर भी बदल सकता हूँ, ठीक है। सेल्स को कुछ और ऑप्शंस भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे सारे के सारे जो लेबल्स हैं, जैसे मैंने मैक्सिमम लेवल को दिया है येलो कलर, आप ग्रीन भी दे सकते हो, आप कोई और कलर भी चूज़ कर सकते हो। तो न्यू फॉर्मेट सेल्स कहीं ना कहीं आपकी जो ये सेल्स हैं इनके कलर कॉम्बिनेशन को बदल देगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा आ जाएगा, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ द टेबल। तो दीज आर द फॉर्मेट्स ऑफ द टेबल विद कलर कॉम्बिनेशन। देखिए मैंने चेंज भी किया है एक आध सेलेक्ट करके। तो ये आपके लाइट कलर के हैं सारे के सारे, ये आपके मीडियम कलर्स हैं, एट लास्ट डार्क कलर हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और न्यू टेबल स्टाइल जो नीचे दे रखा है, इसमें आप नई टेबल्स भी बना सकते हो। न्यू पाइवट टेबल्स और न्यू टेबल स्टाइल्स में आप नई टेबल्स बना सकते हो, अपने टेबल का स्टाइल ही बदल सकते हो पूरा। यहाँ पे नॉर्मली खाली कलर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, आप टेबल की स्टाइलिंग ही बदल दे सकते हैं। क्लियर? तो टेबल की स्टाइलिंग को चेंज करना है तो आप किस में जाएंगे? फॉर्मेट एज अ टेबल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंसर्ट ऑप्शन की, क्योंकि जो सामने स्टाइलिंग है ये सिर्फ और सिर्फ सेल के कलर को चेंज करने के लिए या सेल की स्टाइलिंग को चेंज करने के लिए होती हैं, ठीक है। यानी अगर मैं ये कलर यूज़ करूँगा तो इसी कलर में आप यहाँ टेक्स्ट लिख पाएंगे, और जिस सेल पे ये क्लिक होगा सिर्फ उसी सेल के लिए एप्लीकेबल होगा, सबके लिए नहीं। तो अब हम बात करते हैं इंसर्ट की। तो इंसर्ट में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम या इंसर्ट शीट। यानी आप एक सिंगल सेल भी इंसर्ट करा सकते हैं, एक सिंगल रो इंसर्ट करा सकते हैं, एक सिंगल कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं, या पूरी की पूरी शीट आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या इंसर्ट कराना है। सेम फंक्शन आपके डिलीट में भी होते हैं, मैं आपको शो करता हूँ अभी। दीज आर द ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल ऑन डिलीट। दिखाई दे रहा है? डिलीट सेल्स, इसमें आप जिस सेल पे क्लिक करेंगे वो सेल डिलीट हो जाएगी, जिस रो को सेलेक्ट करेंगे वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी, जिस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इस रो को मुझे डिलीट करना है तो इस रो को सेलेक्ट कर लूँगा, ये रो डिलीट हो जाएगी। इस कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। एंटायर शीट को अगर मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो एंटायर शीट डिलीट हो जाएगी, ठीक है। शीट का मतलब जानते हैं ना, आपकी 3 शीट होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। उन 3 शीट में से आपको जो भी शीट डिलीट करनी है उस पर क्लिक करिए और इस ऑप्शन में जाके डिलीट कर दीजिए शीट को, ठीक है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मे बी पॉसिबल हो सकती है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, टेक्स्ट का ऑप्शन है, फ़ोन का ऑप्शन है, व्हाट्सएप का ऑप्शन है, ऑल ऑप्शंस हैं। बट हाँ, देखो और वीडियो पे कमेंट करो ताकि पता चले कि हाँ वीडियोज़ को देख रहे हो। नहीं देखोगे तो ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेल में कैसे काम करते हैं। फॉर्मेट, अब हम लोग फॉर्मेट की अगर बात करें तो फॉर्मेट में कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसको हमें बहुत ही यूज़फुल बनाना है। जैसे मैंने एक ऑप्शन पे क्लिक किया है हाइड एंड अनहाइड, तो मैं हाइड कर सकता हूँ पूरी रो को, मैं हाइड कर सकता हूँ पूरे कॉलम को। यानी उस कॉलम या उस रो को पहले मुझे सेलेक्ट करना होगा और मैं उसे हाइड कर दूँगा, और मैं उसे ऐसे ही मैं कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, उसे हाइड कर दूँगा, ठीक है। पूरी शीट को मुझे हाइड करना होगा तो शीट को सेलेक्ट करूँगा और वो हाइड कर दूँगा। अनहाइड करने के लिए फिर से मुझे इसी ऑप्शन में जाना होगा, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम या अनहाइड शीट, ठीक है। हाइड और अनहाइड का मतलब समझ में आया कि मान लीजिए कि कुछ ऑप्शन हैं ऐसे जो मुझे सबको शो नहीं करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, उस ऑप्शन को क्लिक करूँगा, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा और इस फॉर्मेट ऑप्शन में जाऊँगा और फॉर्मेट ऑप्शन में उसे हाइड कर दूँगा। वैसे स्टार्टिंग में सारे ऑप्शन अगर पढ़ोगे तो रो हाइट आप बढ़ा या घटा सकते हो, उसकी हाइट अप एंड डाउन कर सकते हैं। ऑटो फिट का मतलब होता है जैसी रो इस समय आपको दिखाई दे रही है सामने एज इट इज़ वैसी हो जाए। ऐसी कॉलम की विड्थ को आप लोग बढ़ा या घटा सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, अगर आप लोगों ने कभी गौर किया हो तो। ऑटो फिट का मतलब भी है कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब भी है कि जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में एक स्टैंडर्ड मैनर होता है, सेम उसी मैनर में आपका कॉलम फिर से वापस आ जाएगा। क्लियर? हाइड और अनहाइड की हम लोग बात कर चुके हैं। रीनेम द शीट, बेसिकली आप लोग अपनी शीट का नाम भी रीनेम कर सकते हो, कुछ और नाम रखना है आप अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो।
मूव और कॉपी या शीप, मूव का मतलब होता है कट, कॉपी का मतलब होता है कॉपी, और दोनों के लिए मुझे पेस्ट करना पड़ता है। तो मूव करने का मतलब होता है मैं पूरी शीट को कट करके कहीं और मूव करा दूँ। कॉपी का मतलब होता है उसी शीट की एक डुप्लीकेट कॉपी मुझे बनानी है। ठीक है। टैब कलर, आप यहाँ से टैब कलर भी चेंज कर सकते हैं। बेसिक बाइट जो आपकी टैब्स होती हैं उनका कलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सामने शो हो रहा होगा, ब्लू है। आप चाहो तो यहाँ से उसका कलर भी बदल सकते हो। ठीक है। प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे आप अपना शीट का पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक है। पासवर्ड देने के बाद जब आप उस पासवर्ड को एंटर कराएंगे तभी आपकी ये पर्टिकुलर शीट, सिर्फ ए शीट की बात हो रही है, पूरे वर्कबुक की बात नहीं कर रहा मैं अभी, सिर्फ शीट की। तो इस शीट को प्रोटेक्ट करना हो तो आप शीट पे पासवर्ड दे सकते हैं। आपका एक सेल लॉक हो सकता है। सेल लॉक का मतलब है आप अगर उस सेल को लॉक कर देंगे तो उस सेल के डेटा को कोई बदल नहीं पाएगा, एज इट इज़ जो डेटा है वो वही रहेगा। अगर आपने ऊपर के पूरे सारे सेल्स सेलेक्ट किए और उसमें सेल लॉक कर दिया तो वो नीचे के डेटा को तो बदला जा सकता है, लेकिन उसके जो हेडिंग्स हैं उसको नहीं बदला जा सकता। ठीक है। फॉर्मेट सेल का मतलब वही है, आप अपने सेल में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप उसमें फॉन्ट, कलर एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं एक सेल में। वैसे तो सेल का ऑप्शन ऊपर भी दे रखा है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसमें। आई थिंक किसी ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप डेस्कटॉप पे आएंगे, जब आप अपने लैपटॉप पे आएंगे, आई नो प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी, क्योंकि आप ये जो सारा का सारा डेटा है ये बिना सेलेक्ट किए अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत समझदार हैं ना, ऊपर वाले ने किलो के हिसाब से हमें दिमाग दिया हुआ है। ओके। एडिटिंग में ही एक ऑप्शन है, पहला ही है ऑटो सम का, जो कि आपके बुक का एक टॉपिक भी है। ऑटो सम का मतलब में आपके, पहले तो मैं ऑप्शन दिखा दूं ऑटो सम का, ये सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आपका सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिन है। सम का मतलब आप जानते ही हैं, सम का मतलब होता है एडिशन। एवरेज का मतलब होता है एवरेज निकालना, एक तरीके से एक मिडिल वैल्यू निकालना जो किसी ने वो सारी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रही होती है, जो नियरेस्ट वैल्यू होती है सारी वैल्यूज़ के। काउंट नंबर्स, जितने भी एक एरिया में नंबर्स आए हुए हैं इन्हें काउंट करके उनका नंबर बता देना कि यहाँ टोटल नंबर्स कितने हैं, कितने सेल्स में। मैक्सिमम नंबर, उन सारे नंबर्स में मैक्सिमम निकालना, उन सारे नंबर्स में मिनिमम निकालना। और इसमें कुछ फंक्शंस और भी हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं, सम इफ और डेट, टाइम एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ ऑटो सम की बात इतनी सी है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ कि ऑटो सम में जो फर्स्ट ऑप्शन है ना सम का, मैं उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटो सम फंक्शन। दिखाई दे रहा होगा सभी को, जिसमें मैंने सिर्फ टोटल के सामने जाके क्लिक किया था ऑटो सम पे। ठीक है। सिर्फ ऑटो सम पे क्लिक किया तो उसने क्या किया, पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया ऑटो, जो जो उसके नंबर्स थे। ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा ना तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस टोटल पे जाके, यानी यहाँ पे जाके मैं कहीं ना कहीं ऑटो सम के फंक्शन पे क्लिक करता तो ये पूरे के पूरी इस रो को सिलेक्ट कर लेता, और जैसे ही मैं उसे एंटर मारता इसका एडिशन दे देता। इट मीन्स जो ऑटो सम फंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं रोज और कॉलम्स के एडिशन को आपके सामने एज इट इज़ रख देता है, आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा डेटा सेलेक्ट करके आप ऑटो में एवरेज निकालना चाहें, आप इस सारे के सारे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप ऑटो क्या था, काउंटिंग, सारे नंबर्स को काउंट करना चाहें तो सारे के सारे नंबर काउंट करके आप किसी भी सेल में वो फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है। आपको फॉर्मूले लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है आपका ऑटो सम फंक्शन की, सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा को सिलेक्ट करना है और जाके ऑटो सम के फंक्शन पे किसी एक ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, वो चाहे सम हो, एवरेज हो, काउंट हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम हो। क्लियर। बेसिक फंक्शन यही होते हैं आपके जो आप लोग यूज़ करते हैं। वैसे तो फंक्शंस बहुत सारे हैं, फॉर्मूलों का पूरा गढ़ है यहाँ पे, पर आप लोग जो यूज़ करते हैं वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। तो ये आपके सिलेबस के फंक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। एडिटिंग में हम सेकंड ऑप्शन करते हैं फिल का। फिल का मतलब होता है कलर फिल करना, जो यहाँ पे फिल किया गया है। तो इसमें क्या है, डाउन, नीचे की तरफ जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है, जहाँ पे आपका डेटा क्लिक है उसके नीचे के सारे फंक्शन, राइट साइड के, लेफ्ट साइड के, अप ऊपर साइड के। तो ये एक तरीके से आपके डेटा को फिल करने का या कलर को फिल करने का एक ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट, ये है आपका क्लियर, डेटा को क्लियर करने का ऑप्शन है। क्लियर ऑल का मतलब आप जितना डेटा सेलेक्ट करोगे वो सारा का सारा हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट मतलब जो आपका ऊपर का फॉर्मेट बना हुआ है ना, जिसमें आपको डेज, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 ये दिखाई दे रहा है, तो इस फॉर्मेट को सिर्फ डिलीट करेगा, आपके डेटा को छोड़ देगा। क्लियर कंटेंट तो आपके डेटा के कंटेंट को क्लियर करेगा, एक तरीके से आपके स्ट्रक्चर को पूरा डिलीट कर देगा। ठीक है।
और लास्ट में क्या है, क्लियर कमेंट। अब यहाँ पे कोई कमेंट तो है नहीं, अदरवाइज वो क्लियर कमेंट के ऑप्शन को डिलीट कर देता। ठीक, कमेंट हम लोग नीचे बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक कमेंट सेक्शन बना होता है, हम उसको करने के लिए, कमेंट को डिलीट करने के लिए हम यहाँ से ऑप्शन करते हैं। अदरवाइज वहाँ उसमें भी एक ऑप्शन आता है, आप राइट क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट जो सेक्शन है वो अपने आप डिलीट हो जाता है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप, मैं जो यहाँ आपको बता रहा हूँ प्लीज़ वो आपके दिमाग में जाए भी। सिर्फ वीडियो बनाने या देखने से सारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, तो प्लीज़ ऑब्जर्व द वीडियो, यूज़ योर लैपटॉप्स। शॉर्ट एंड फिल्टर, शॉर्टिंग का मतलब होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, यू कैन यूज़ द फर्स्ट ऑप्शन, दिस वन इज, फर्स्ट वन इज असेंडिंग ऑर्डर। ओके, A to Z, Z to J इट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। और फिल्टर का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ों को, जैसे मान लो मैंने एक फ़िल्टर लगाया, जितने, जैसे इसके सब जो मार्क्स थे, जिनके मार्क्स 50 से कम हो सिर्फ वही शो हो जाएं। मैंने सिर्फ ये फ़िल्टर पे लगाया और क्लिक कर दिया, तो जिनके मार्क्स 50 से कम होंगे यानी 49 और 1 मार्क्स, इनके बीच के जितने भी लोग हैं वो सब शो हो जाएंगे। यानी 50 से नीचे 49 और 0 से ज़्यादा 1 मार्क्स, तो 1 to 49 जितने मार्क्स आए होंगे सबके वो सब शो हो जाएंगे। क्लियर? या फिल्टर मैंने लगाया कि ए अल्फ़ाबेट के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे शो हो जाएं, तो अनिल, आदित्य, अदिति एक्सेट्रा जितने भी नाम ए से हैं, ठीक है, वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। क्लियर? लास्ट ऑप्शन है आपके होम टैब का, वो है फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड, रिप्लेस, गो टू, इसके बारे में हम लोग बहुत पहले बात कर चुके हैं। फाइंड रिप्लेस का मतलब क्या होता है, किसी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करना, किसी स्पेसिफिक वर्ड को रिप्लेस कर देना एक सिंगल वर्ड से। गो टू का मतलब डायरेक्ट जंप करना किसी पेज नंबर पे, किसी शीट पे। अब यहाँ पे गो टू स्पेशल है तो शीट नंबर पे भी हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लाइन वाइज चलेंगे, हम किसी शीट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर्मूला, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फॉर्मूला की बात हम लोग तब करेंगे जब हम इस वाले ऑप्शन में आएंगे, ये, ठीक है, तो फॉर्मूला की बात हम लोग तब करेंगे। ठीक है, डेटा वैलिडेशन की बात भी हम तभी करेंगे। बाकी इसमें सेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये आप नॉर्मली करते रहते हैं। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना होता है, जिस ऑब्जेक्ट पे आपको ऑप्शन फीड करने होते हैं, उसी डेटा को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो आपका सिलेक्शन पेन के आता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के उसमें आता है। तो ये है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ होम टैब का। ठीक है, जो आपकी क्लास में है उससे जितना भी डेटा आपको क्लास में दिया गया है, इतनी क्लास में आने वाला है, उससे कई गुना ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप लोग सीखें, इसलिए नहीं कि आप लोग वीडियो देख के सिर्फ प्रेजेंट लगा दें। तो कोशिश करिए कि सारी की सारी चीज़ें ना सही तो कम से कम आप 70 to 80% सीख जाएं। आपके बुक में बहुत थोड़ा सा एरिया दे रखा है, फिर भी मैं आपको बहुत ज़्यादा सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग नॉलेज गेन कर सकें। आपको कोई ये ना कहे कि आप MS एक्सेल में ये पॉइंट नहीं जानते हैं, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को क्लिक करके आपको शो करता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंसफुली। कीप स्माइल, कीप हैप्पी। ठीक है, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, गंदगी बिल्कुल ना करें, खुश रहिए, सबको खुश रखिए। ठीक है, फिर से देखते हैं अनिल कुमार शो जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, थैंक यू सो मच, गुड बाय।